सो श्रीकांत, मैंने ना तुम्हारी बहुत फाइट्स देखी हैं एंड पर्सनली मेरे को बड़ा मज़ा आता है तुमको देख के, क्योंकि यू आर अ वेरी इंटेंस फाइटर, यू आर अ वेरी लाइक सीरियस फाइटर, but at the same time you also have a playful side to you. I've also seen you when you are not in the cage laughing and joking with people. So मेरे लिए वो एक बड़ी ultimate combination है where on one hand you're a warrior but on the other hand you also know how to switch off and relax, right? So you're a great guy, you're an accomplished athlete. Like according to me you meet all the criterias of someone who can mentor young athletes. तो पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नए एमेच्योर फाइटर्स आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्रो बनना चाहते हैं, MFN खेलना चाहते हैं या किसी बड़ी लीग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रोड मैप है? एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बोलना चाहूँगा कि हैव फन. जैसे मैं फ़न करता हूँ आप भी फ़न करो, बिकॉज ऐसा नहीं कि खाली फ़न ही करना है, उसके बाद काम भी करना है. बट इफ़ यू आर हैविंग फन while you train or do whatever job you are doing, it's easy. It becomes easy because you don't have to take the stress of the job. It's not a job. You're basically having fun. Imagine you go to training and all the time you train and you're not basically enjoying it. You're getting injured. At one point of time you will give up. Life will say okay, that's too much. बहुत हो गया boss, खत्म कर लो. But imagine you go to training and you enjoy that training all the time. You will always want next day to go back to the training and the next day to go back to the training, and that is how you grow. And when you come down to amateur fighters these days, like when we were fighting those days, it was very difficult for us because there was no mentors, no one seniors to us saying anything. And this is the opportunity for me to say it to the youngsters who are coming up, and I am very thankful that I am sitting in a stage where I can guide people up, and if I can guide a couple of them to a bigger stage, I'll be very happy with myself. So मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है क्या ट्रेनिंग करनी है, राइट? एक ये फन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि इतने सीरियस क्यों हो यार. एक तो फाइटर्स की ना कई बार पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो बड़े सीरियस होते हैं कि हमें तो बस फाइटिंग करनी है. भाई कर लो फाइटिंग, एंजॉय तो करो, तभी तो कर पाओगे लंबे टाइम तक. So that's I'm really happy you started with that point. Yeah. Instead of giving people ki technically do this, technically do that, the first point you said was have fun. Yeah. I'm really happy you said that. Chalo, so now the person is having fun, enjoying his training. Ab exactly karna kya hai yaar? Okay. How do you train? How do you fucking become a good fighter? Okay. I'll come to the training part later. Okay. First you have to see the graph. Like, okay, what do you want to do in your life? At the age of 16, 17, 18, everyone wants to be a fighter. Why? Because that is where a boy starts becoming a man. Life में testosterone आ जाता है, aggressiveness आ जाता है. You have to prove to everyone कि लो, I am the strongest, I am the baddest, this, that and all. Yeah, you basically become a wild gorilla. Yeah. And that is where you need a guidance. What kind of guidance you need? First of all, like the basic thing is training part. You cannot train at that age for 5-6 years in an average gym जहाँ से कभी कोई प्लेयर्स नहीं निकले हैं, कि कभी कोई फाइटर्स नहीं निकले हैं. सो बेसिकली तुमको कौन गाइड करेगा अगर वहाँ से कोई नहीं निकले हैं? एंड व्हाट काइंड ऑफ रूटीन आर यू गोइंग टू फॉलो? बिकॉज देर इज बेसिकली नो रूटीन ओवर देयर इन दोज काइंड ऑफ जिम्स जहाँ से फाइटर्स प्रोड्यूस हों. सो यू बेसिकली नीड टू ट्रेन अंडर द फाइटर्स और अंडर कोचेस हु हैव प्रोड्यूस्ड गुड फाइटर्स. किसी के पास भी जाओ, किसी के पास भी ट्रेनिंग करो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज मेन चीज़ है. सेकेंड थिंग, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग बाय योरसेल्फ एट द वेरी बिगिनिंग. पैसे में प्रॉब्लम होगा, मैनेज करना आना चाहिए. यू कैनॉट गो एंड आस्क पीपल कि मुझे पैसा चाहिए, चाहिए वो चाहिए. मुझे जब मैं करियर स्टार्टिंग किया, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, दोस्तों से पैसा मांगा, उधारी लेके 3 साल मैं खेलने जाता था इधर उधर घूम फिर के, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे. उसके बाद MBA जब किया, तभी मैं पर्सनल ट्रेनिंग करता था लोगों के साथ मिल के कि महीने में मेरे को 30,000 40,000 कुछ भी आ जाए, तो उसमें से तो मेरा 20-25 हज़ार तो ट्रेनिंग में निकल जाता था. पॉकेट में कुछ बचता नहीं था कुछ भी करने के लिए. बट ये सब करना ज़रूरी था वो टाइम में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग नहीं समझेंगे तुम क्या कर रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट सच अ बिग स्पोर्ट इन द कंट्री. एंड स्पेशली पेरेंट्स लोग तो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि कौन चाहेगा अपने बच्चों को जाके केज में घुसा हालात खाने के लिए, और मैं सपोर्ट करूँ कि मेरा बच्चा घुसा हालात खाए. ऐसा नहीं हो पाएगा. सो बेसिकली इनिशियली आपको खुद सपोर्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू सी द फाइनेंशियल साइड ऑफ इट एज वेल, कि पहला ट्रेनिंग हो गया, सेकंड फाइनेंस हो गया. नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट कि मुझे साल में कितना मैचेस खेलना है, कहाँ का खेलना है, और मुझे इंजरी अपना कैसे मैनेज करना है, ये सब भी आना चाहिए.
लोग चले जाते हैं खेलने के लिए बट देखते नहीं कि कहाँ खेल रहे हैं। अगर आपको मेडिकल असिस्टेंस नहीं है, एक मैच खेलने चले गए एंड आंख फूट गया, क्या करोगे आप? आपका पूरा ज़िंदगी चला गया। ना खेल पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे, ना कोई और जॉब कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली यू वेंट वेस्ट। सो यू हैव टू सी ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज अ फैक्टर एंड देन यू हैव टू चूज़ कि मुझे यहाँ जाके खेलना है, इसके बाद 2 महीना रेस्ट लेना है, फिर वहाँ खेलना है। एंड यू हैव टू बी वेरी बिजी एट द इनिशियल पॉइंट, जब when you are 16, 17, 18, 19 till 21, 22, 23, you have to be very busy in your life कि competition after competition after competition खेल रहे हो, because you are young, your body will recover very fast and once your body starts recovering very fast, you can play a lot of sports. After 24, 25 it's not easy because then you have start picking and choosing fights कि साल में सिर्फ 3 बार ही खेलूंगा कि 4 बार खेलूंगा, उससे ज़्यादा खेलने से my body cannot take it and then you start becoming choosy and by that time you start need to make money कि 24-25 के हो गए, तब तक इतना पैसा बनना चाहिए कि 1 मैच खेल के 2 मैच खेल के आपका साल निकल जा रहा है कि 2 साल निकल जा रहा है। लेकिन तब तक बिल्डअप आप 17-18 से करना चालू करना चाहिए एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट रिगार्डिंग दिस। तो मतलब कम से कम 5 साल का बिल्डअप है जिसमें आप खुद पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ। और ये चीज़ बहुत सारे यंग फाइटर्स को मैंने देखा है, उन्हें पता नहीं होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती हैं डे 1 से। तो पहले आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। MMA इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट, आपकी सप्लीमेंट्स, इसमें लाइक यू सेड पैसा लगेगा। एंड एमेच्योर टूर्नामेंट्स में तो कोई पैसा देता भी नहीं है। सो इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन फीस होती है एमेच्योर में खेलने की, तो आपको खेलने के पैसे देने पड़ते हैं। आई वांट टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे जो कॉमन लोग समझेंगे। आप पढ़ाई करने जाते हो, नर्सरी, प्रेप 1, 2, क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, कितना साल हो? 15 साल, 17 साल पढ़ाई कर रहे हो आप। कौन रुपया दे रहा है आपको? कोई नहीं दे रहा है। क्या गारंटी है कि पढ़ाई के बाद आपको रुपया मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। देन आप अगर 17 साल, 15 साल, 17 साल आप अगर निकाल रहे हो पढ़ाई के अंदर और आपको पता नहीं क्या होने वाला है, वो स्टिग्मा अगर लोगों का है, देन अगर आप जानते हो कि मैं एक फाइटर बन सकता हूँ, why are you not spending that 5 years at least कि 5 साल? एक ये आप you are investing in yourself. Yeah, you're basically investing in yourself. Yeah. तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कम से कम 5 साल, एंड आई वुड से कम से कम है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कम से कम 5 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंस गेन करो। क्योंकि एक हार्श रियलिटी ये भी है श्रीकांत, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इस 5 साल में बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज होगा कि मैं MMA के लिए बना ही नहीं हूँ। बहुत से बहुत 90% ऑफ देम। एग्जैक्टली। तो ये 5 साल में 90% लोग तो MMA छोड़ देंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक इसमें डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। आप यंग थे, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन था, आपका मन था कि भाई मैं प्रूव करूँ। आपने एक रास्ते पे चलना शुरू किया और आपको 2 साल बाद रियलाइज हुआ यार ये मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं खाने अपने मुंह पे घूसे, मुझे नहीं घुसना केज में। तो इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, राइट? आप अपना रास्ता चेंज करो। मे बी यूल बिकम अ कोच, मे बी यूल डू समथिंग एल्स इन स्पोर्ट्स, मे बी यूल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स। बहुत बड़ी लाइफ है यार, बहुत बड़ी दुनिया है। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, राइट? तो आपने 5 साल दिए, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, 90% लोग गेम से बाहर हो गए। अब जो 10% बचे हैं, you will be competing on the top. What in terms of what would you like to tell them in terms of training? So when it comes down to training, सबको ऐसा है कि मैं दिन में 1 बार ट्रेनिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लाइक दुनिया बदल चुका है। इट्स नॉट लाइक पहले जैसे कि आप जाओगे डोजो, 1 बार ट्रेनिंग करके घर में आके बैठ जाओगे। नो, थिंग्स आर नॉट लाइक दैट these days. You have to put your time in everything. Strength and conditioning, major part of the game. Recovery, major part of the game. ट्रेनिंग ऑफ कोर्स मेजर पार्ट ऑफ द गेम। दिन में 2 बार ट्रेनिंग, 3 बार ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, डाइटिंग, डाइटिशियन, ये वो। लाइक मेरा तो पूरा हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, मैच से पहले 8 हफ्ता सारा निकल जाता है। घर वालों से बात नहीं कर पाता, किसके साथ बात नहीं कर पाता, कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, लोग घर नहीं आते हैं, कुछ नहीं है। क्योंकि बेसिकली मेरा पूरा दिन सुबह से शुरू होकर रात तक मेरा यही चलता है। सुबह ट्रेनिंग हो गया, सो गया आके, दोपहर में उठा, लंच किया, सो गया, शाम को ट्रेनिंग हुआ, फिर आया, फिर 1-2 घंटा ब्रेक, फिर शाम को फिर लिफ्टिंग, फिर रात को आया, डिनर किया, सो गया। सो बेसिकली टाइम ही नहीं है। एक एग्जांपल बताओ, एक 1 वीक का। हाँ, फ्रॉम से मंडे टू सैटरडे। ओके, हाउ वुड यू ट्रेन? लाइक मंडे मॉर्निंग स्ट्राइकिंग, मंडे आफ्टरनून स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ऐसे गिव अस एन एग्जांपल। या सो आई विल टॉक यू अबाउट द कैंप बिकॉज एवरीवन थिंक्स लाइक कि एवरीवन ट्रेन्स हार्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच इज नॉट वेरी ट्रू।
when you are not in camp, you should not push yourself for a very long period of time because there is a high chance of getting injured. And तुमको इंजरी ही तुम्हारा सालों साल ले लेगा. एक बार तुम्हारा मेन प्राइम टाइम में अगर आपको बहुत डीप इंजरीज हो गया, then you are losing out on life. So basically when you are not in a camp, बेसिकली कैंप कितना होता है 10 वीक्स के 8 वीक्स का होता है. Right. उससे पहले यू ट्रेन ट्वाइस अ डे. एक बार हार्ड करो कि एक बार सॉफ्ट करो, इट डिपेंड्स ऑन योर कोच हाउ योर ट्रेनिंग कैंप इज. बट इफ आई विल टॉक अबाउट माई ट्रेनिंग कैंप, आई बेसिकली ट्रेन 3 times इन अ वीक, सॉरी बेसिकली 5 days जो ट्रेनिंग होता है, जो 3 दिन ट्रेनिंग करते हैं उसमें 3 बार दिन में ट्रेनिंग होता है, बाकी 2 दिन होता है उसमें 2-2 बार होता है. सो बेसिकली क्या होता है, ये ऑफ सीजन है आपका? नहीं, ये ऑन सीजन. ये ऑन सीजन है. ऑफ सीजन इज ट्वाइस अ डे. सुबह ट्रेनिंग हो गया, शाम को कुछ और ट्रेनिंग हो गया. सो इट्स लाइक कि दोनों हार्ड नहीं रहता. लेकिन ऑन सीजन क्या है, सुबह भी हार्ड रहता है, शाम को भी हार्ड रहता है, और लिफ्टिंग जब रहता है तो दोपहर में भी हार्ड रहता है. तो दिन भर हार्ड ही चलता रहता है. और ये 8 हफ्ता चलता है. इट्स नॉट ईजी, यू विल ब्रेक डाउन. सैटरडे संडे होने से लोग बोलते हैं थोड़ा मिलने, थोड़ा घूमने जाते हैं, दारू पीने जाते हैं, ये पर कुछ नहीं हो पाएगा. सैटरडे संडे ही मिलता है सोने के लिए, और टाइम ही नहीं है सोने के लिए. दिन में 7 घंटा 8 घंटा ऐसा है. सो बेसिकली मंडे क्या होता है, सुबह हो गया MMA, ड्रिलिंग एंड स्पारिंग, दोपहर में हो गया लिफ्टिंग, शाम को हो गया फिर किक बॉक्सिंग एंड जुत्सु. ट्यूसडे सेम थिंग चला है. वेडनेसडे हो गया सुबह वेट लिफ्टिंग, एंड शाम को रनिंग एंड स्प्रिंटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड स्प्रिंटिंग. सो इट्स बेसिकली अ एक्टिव ब्रेक वेडनेसडे. उसमें भी लगता है लेकिन घुसे नहीं पड़ रहे हैं, दिमाग को, बॉडी को रेस्ट ले. राइट. फिर आपको वेडनेसडे थोड़ा सा कम पड़ गया था प्रेशर, थर्सडे फिर थोड़ा भारी प्रेशर रहेगा कि अगेन मंडे थर्सडे मॉर्निंग हार्ड स्पारिंग होगा एंड योर बॉडी इज नॉट रिकवरिंग. तो शाम को अगेन इट विल बी लाइक सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड, वेरी टेक्निकल एंड वेरी सॉफ्ट. फ्राइडे हफ्ते भर का एक्यूमुलेशन हो गया होगा बॉडी में, दर्द ये वो सब, तो फ्राइडे हैज टू बी लाइट. एंड सैटरडे इज एक्टिव ब्रेक. सैटरडे अगेन लिफ्टिंग, रनिंग, ये सब चालू रहेगा, योगा ये सब एक सेशन. एंड शाम को वी लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू. सम पीपल प्रिफर स्विमिंग, सम पीपल प्रिफर साइकिलिंग, फुटबॉल खेलना मिलना. या सो बेसिकली एक्टिव ब्रेक है सैटरडे. और संडे इज लाइक कंप्लीट ब्रेक. नहीं तो रोबोट तो नहीं है, बॉडी टेक्स 48 hours टू रिकवर. यू कैन नॉट जस्ट पुश इट. रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये चीज़ मैंने ना सारे प्रोज में नोटिस करी है, दैट द प्रोज टॉक अ लॉट अबाउट इंजरी प्रिवेंशन, द प्रोज टॉक अ लॉट अबाउट गोइंग स्लो. और ये फॉर समबडी हु हैज़ नॉट बिन अराउंड एथलीट्स लाइक यू, जब उनको पहली बार ये चीज़ सुनने को मिलती है उन्हें लगता है ये क्या बोल रहे हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि बचपन में ये आइडिया होता है, एमेच्योर फाइटर्स को ये आइडिया होता है कि इट्स ऑल अबाउट गोइंग हार्ड. बट एक्चुअली एज यू रीच द प्रो लेवल, इट्स नॉट अबाउट गोइंग हार्ड, इट्स अबाउट गोइंग लॉन्ग. कि भाई 5 साल 10 साल 15 साल तुम वो कर सको जो तुम करना चाहते हो. एंड दैट रिक्वायर्स यू टू बी सेफ. एंड स्पेशली जब आप MMA जैसी चीज़ कर रहे हो, आप आग के साथ खेल रहे हो यार. MMA इज़ अ डेंजरस स्पोर्ट. आप आग के साथ खेल रहे हो, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट बी सेफ एंड मेक श्योर यू टेक आउट टाइम टू रिकवर. राइट. एंड आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे कि इंजरी प्रिवेंशन. सो द फर्स्ट 5 years, अब जो नॉर्मली हम लोग पकड़ रहे हैं फर्स्ट 5 years, तो फर्स्ट 5 years everyone wants to go hard. You're young, you can go hard and recover as well. After a certain age, going hard is not an option, क्योंकि आप अभी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, आप अभी खेलने लग गए हो. You cannot miss out on matches. साल में 3 मैच मिल रहे हैं, उसमें से 1-2 अगर मिस करके साल में 1 मैच मिल रहा है. So basically you are not getting paid for what you are doing in the whole year. एंड उसके ऊपर ये है कि जितना नॉलेज आपको गेन करना था, यू गेन्ड इट वाइल यू आर यंग. सो यू आर ब्रेकिंग एंड मेकिंग योर सेल्फ. बॉडी टूट रहा है, जुड़ रहा है, सब ये सब होते रह रहा है, लेकिन वो सब एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तक हो सकता है. एट द एज ऑफ 30 योर रिकवरी रेट स्लोज डाउन. यू कैनॉट गो एज हार्ड एज यू वेंट व्हेन यू आर 19. दैट इज़ वेयर तुम्हारे ब्रेन में अभी सारा ट्रेनिंग है, 10 साल का ट्रेनिंग तुम्हारे ब्रेन में है. यू जस्ट बिकॉज यू हैव टू मेक योर बॉडी रेडी. दिमाग में नॉलेज है, सब कुछ है, बस बॉडी को रेडी करना है. बॉडी रेडी करने के लिए यू नीड 8 weeks to 10 weeks, बिकॉज नॉलेज ऑलरेडी है. सो दैट इज़ वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन टू प्ले. एंड एज यू ग्रो मोर ओल्डर कि 30-35 हो गए, ट्रेन once a day because you already have it in your muscle memory and brain memory. All you have to do is कि get back into shape. बाकी सब तो ऑलरेडी है. सो ये with stage of life the training kind of schedule changes. You cannot say कि वो दिन में एक बार ट्रेनिंग करके इतना ऊपर पहुंच गया, मैं दिन में 4 बार ट्रेनिंग करके क्यों नहीं जा पा रहा हूँ. It depends on people. So it's like as they say, young people have energy
Yeah. but old people have wisdom. Wisdom, yeah. So आपका जो IQ है, आपकी जो intelligence है, that kind of makes up for the lack of energy and the lack of hard work you can do when you reach your 30s and 40s. Yeah. So you become an intelligent fighter more than a simply a hard worker. Yeah, you can be hard worker, but you would prefer to be an intelligent fighter as well. कि अगर आप smart खेल सकते हो, then why do you want to work hard? You work only hard to get back into shape, not to fight hard. Fight has to be very smart. Your fight IQ has to be there. सब कुछ वैसा होना चाहिए. So with time you will grow as a fighter. Beautiful, beautiful, yaar. So before we close this, one question I'd like to ask you is that almost every fighter asks these days. Okay. How do I get selected for something like MFN or One Championship or Brave or any of these big leagues? How do I reach there? First of all, you have to put your training together. Second thing, you have to come back to the circuit, जैसे कि national circuit, international circuit, जो भी हो. Don't go pro directly. I did a lot of mistakes. That's a very important point. Very important. I did a big mistake going pro directly with very less amateur experience. Okay, but I was 18 years old, so I could rectify that mistake. And I would say, like, spend a lot of time in the amateur circuit, spend a lot of time in training, spend a lot of time with people with knowledge and mind. So एक आदमी अगर 30 साल का नॉलेज तुमको बैठे बैठे चेयर में बैठे बैठे ज्ञान दे के सिखा दे रहा है, you are getting 30 years of knowledge by sitting with that person over there, which is a very big tick mark for you. Like, that is a very positive sign towards your career. You are getting that knowledge after his 30 years of experience, so that you don't do the same mistakes for the next 30 years. And you should take his wisdom like properly and use it in your own life. So basically, you train a lot, spend time in the mats, spend time with good people, spend time with intelligent people, and you have to basically get direction to your career. एक बार करियर को डायरेक्शन दे गए तो आपको रास्ता पता है तो आप चलते जाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मेन चीज़ है रास्ता बनाना. पहले रास्ता बनाने में टाइम डालो, फिर रास्ता एक बार मिल गया तो अपने आप चलने चालू हो जाएगा. Excellent, excellent. So slow and steady चलो. Yeah. जल्दी में मत रहो कि मुझे प्रो जाना है, मुझे प्रो जाना है, क्योंकि कई तो बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं. और जैसे आपने बोला आपने गलती करी, बहुत लोगों को मैंने देखा है, उन्हें कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रो जाने की, वो उनके लिए टाइम सही नहीं होता, पर वो फिर भी दे आर टू यंग, दे आर टू इनएक्सपीरियंस्ड, बट वो फिर भी उस अपॉर्चुनिटी दे से यस टू इट बिकॉज उन्हें लगता है कि भाई प्रो जाना मतलब सक्सेस हो गया मेरा. एंड दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू मेंटेन देयर एज वेल. और अब तो श्रीकांत इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं एमेच्योर सर्किट में. आई एम श्योर पहले के ज़माने में 10-12 साल पहले बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी. अब हर महीने इवेंट्स हो रहे हैं और अच्छे हाई क्वालिटी इवेंट्स हो रहे हैं. वो पहले की तरह नहीं कि बेसमेंट में मैट डाली और इवेंट चल रहा है. अब अच्छे हाई क्वालिटी इवेंट्स हो रहे हैं, केज में होता है, एम्बुलेंस होती है. तो ये एडवाइस मैं भी लोगों को देता हूँ कि भाई पहले स्टेट लेवल खेलो, नेशनल लेवल खेलो, इतना खेलो कि सबको तुम्हारी शक्ल पता चल जाए कि अरे ये तो वो बंदा है जो नेशनल 4 बार जीत चुका है, अरे ये तो वो बंदा है जो स्टेट में हमेशा जब स्टेट में फाइट करता है अच्छा परफॉर्म करता है. एंड लाइक यू सेड, नेटवर्किंग विद गुड पीपल. आपके मैनेजर्स हों, आपके मेंटोर्स हों जो आपको गाइड करें. एंड जब ये सब चीज़ें आप बना लोगे ना, तो इट्स लाइक आपने एक बीज डाला है, पानी मिल रहा है उसको, सनलाइट मिल रही है उसको, पेड़ तो ऑटोमेटिकली उगेगा. आपको उसको बीज को खोद के देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है भाई, पेड़ उग रहा है कि नहीं उग रहा है. जस्ट टेक केयर ऑफ दीज फ्यू बेसिक थिंग्स, बी पेशेंट, एंड पेड़ तो उगेगा ही उगेगा. All right, bro. Thank you so much for doing this. Any last message you'd like to give the young fighters that are inspired by people like you, that follow people like you? Any message you'd like to give them? No matter how you feel, go to the training room, go to the mats, train. It doesn't matter if you want to train hard or you don't want to train and all. Go to the mats. Go to the mats. Spend time in the mats. You don't have to train. Don't train, but spend time on the mats. Talk to people. Talk to the people in your team. Be on the mats, like be in the gym all the time, so that you go into that environment where कि लगेगा कि नहीं, मैं अगर जिम नहीं गया तो मुझे अजीब लग रहा है. क्यों? Because that is my office. That is all. In a long run, it will provide you money, it will provide you name, it will provide you fame. So you don't stop going to the gym. You have to keep going to the gym no matter what. Perfect, यार. What a nice message. जो करना है वो करना है, whether you feel like it or you don't. Yeah. Chalo, Shrikant. Absolutely. If you're just having fun, then you can follow your feelings. But if you want to be a professional,
then make sure you are doing what needs to be done, no matter how you feel. Srikanth, thank you so much. Unfortunately, your fight in MFN 7 did not happen because your opponent got injured or whatever. But we are all really looking forward to seeing you in the cage real soon. Thank you for doing this. See you around.